तो वेलकम। आज हम करने वाले हैं एनपीटीईएल का असाइनमेंट नंबर 2 ऑफ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ प्रिंसिपल ऑफ। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें पता है, इट्स द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, सबको पता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। ओके, so this is the statement of conservation of energy, and first law of thermodynamics is basically conservation of energy, principle of conservation of energy. Okay, so coming to the next question, which among the following statement is true? So energy can either be created or be destroyed during the process. ये तो complete violation है first law का। energy can neither be created nor be destroyed during a process and it can change only its form. It can only change its forms. So this is the correct statement. So this is the correct answer for it. ये बाकी दो स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। So this is only in accordance with the first law of thermodynamics, that is principle of energy conservation. So this is the correct statement. So coming to the next question, consider a closed system, okay, undergoing a cyclic process. For a closed system, first law of thermodynamics can be written as del Q minus del W is equal to dE, where del Q is what? It is differential change in heat, differential transfer of heat, and del W is differential transfer of work, and dE is the differential change in energy of a system. Okay, so what they are saying, क्या बोल रहे हैं वो कि एक क्लोज सिस्टम है, वो साइक्लिक प्रोसेस मतलब साइक्लिक प्रोसेस हो रही है क्लोज सिस्टम में, तो डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ वर्क डन। सो दिस इज बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर क्लोज सिस्टम। ओके, सो ये बेसिकली क्या है, फर्स्ट लॉ है फॉर अ क्लोज सिस्टम। तो वो क्या बोल रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ वर्क डन, ओके, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम एंड अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम। सो हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम, दैट इज हीट इनपुट, माइनस द वर्क डन बाय द सिस्टम माइनस W आउट। ओके, सो ये जो डिफरेंस है, टू ब्रिंग बैक द सिस्टम टू द इनिशियल स्टेट, मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, मतलब साइक्लिक प्रोसेस में del W माइनस del Q. So what will be the difference between del W minus del Q? They are asking. So this is the question that they are asking. So what will be the net difference? So integrating it. So cyclic integral of heat, cyclic integral of work, and cyclic integral of total energy. So as we know that dE, मतलब ये जो total energy का change है, ये point function है, मतलब ये dE can be written as E2 minus E1, that is it depend only upon the initial, final and initial state। ठीक है, तो ये पॉइंट फंक्शन है और स्टेट पॉइंट पर डिपेंड करता है बस। तो जब स्टेट पॉइंट पर डिपेंड करेगा और ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो इट कैन बी डायरेक्टली इंटीग्रेटेड एंड रिटन लाइक दिस, एंड आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज दैट दे हैड मेंशन्ड, that it is coming back to the initial state. Okay, so E2 will becoming equal to E1 at the end of the process, that is at the end of cycle. Okay, so E2 will be equal to E1, so cyclic integral of dE will become equal to 0. Okay, so from this net integral dQ minus net cyclic integral of del W, that will be equal to 0, and मतलब माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, या इसको इधर ले आके ऐसे लिख देंगे, तो ये आ जाएगा del W माइनस del Q net over the cycle. Okay, that will be equal to 0. So it is always equal to 0 as per first law for a closed system undergoing cyclic process. Okay, तो ये डिफरेंस हमेशा 0 के बराबर होता है, हमने देख लिया कैसे होता है। तो so coming to the next question, which among the following properties is defined by first law of thermodynamics? So total energy is a property which is defined by first law of thermodynamics, which consists of, let me write it clearly. So total energy E can be written as sum of internal energy, मतलब ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो भी एक्टिविटीज होती है उन सारों का सम हम एक एनर्जी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इंटरनल एनर्जी, विच इज ड्यू टू द बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल एट मींस एट मॉलिक्यूलर लेवल। ओके, so when it is seen at a macroscopic scale, then it is represented as internal energy. And second form of energy is kinetic energy, and other is potential energy. It is due to virtue of its motion, that is velocity possessed by a body or a system, and it is due to the elevation, means एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में बॉडी के एलिवेशन की वजह से जो एनर्जी उसके पास होगी, दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी।
and it is due to velocity and it is due to its molecular behavior, that is behavior at microscopic level. So this all together constitute a total energy, means a sum of these three energies constitute a total energy. So total energy is a property which is defined by first law of thermodynamics in, मतलब ये लॉ जो हम डिफाइन करते हैं Q minus W is equal to E. Basically it's a change. So let me write it properly. So del Q minus del W is equal to dE from, means in this law, this property, this is first law of thermodynamics. So the property total energy is defined by the first law of thermodynamics. So D is the correct answer for it. Coming to the next question. इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ठीक है, तो बोथ वर्क डन बाय द सिस्टम एंड हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम आर पाथ फंक्शन, ये तो करेक्ट है, दोनों पाथ फंक्शन है. एंड देयर डिफरेंस इज ऑल्सो पाथ फंक्शन, ये इनकरेक्ट है, बिकॉज हमने देखा है डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इज डी, मीन्स ऑल्दो ये हीट और वर्क ट्रांसफर ये पाथ फंक्शन है, लेकिन उनका जो डिफरेंस है दैट इज चेंज इन अ टोटल एनर्जी, दैट इज अ पॉइंट फंक्शन. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. एंड both work done by the system and heat transfer to the system are path function, but their difference is point function. So B is the correct answer for it. बाकी ये दोनों स्टेटमेंट गलत होंगे, कुछ ना कुछ उल्टा ही लिखा होगा इसमें. So this is the most correct statement. Most correct what, मतलब यही सही है, बाकी तीनों गलत ही है. ठीक है, तो B is the correct answer for it. Coming to the next question. Which among the following is true regarding an isolated system? So isolated system is such a system, suppose this is a system, so and this is surrounding, say, sorry, so this is system and this is surrounding. So isolated system एक ऐसा टाइप का सिस्टम होता है जो ना सराउंडिंग के साथ, जिसके साथ मास ट्रांसफर जीरो हो जाए, हीट ट्रांसफर जीरो हो जाए, मतलब नेट इंटरैक्शन इट्स इक्वल टू जीरो. ओके, नॉट, मतलब वो ना तो सराउंडिंग के साथ मास ट्रांसफर कर पाएगा, ना हीट ट्रांसफर कर पाएगा, ना वर्क ट्रांसफर कर पाएगा, मतलब कोई भी एनर्जी का इंटरेक्शन, ना इधर एनर्जी इंटरेक्ट कर पाएगी, ना इधर मास इंटरेक्ट कर पाएगा सराउंडिंग के साथ, ना सराउंडिंग इसके साथ इंटरेक्ट कर पाएगा. ओके, तो आइसोलेटेड सिस्टम इज सच अ सिस्टम इन विच neither mass transfer takes place nor energy transfer takes place. So total energy of isolated system always remains constant. Okay, so this is the correct statement. So wait a second. So start करते हैं with seventh question. So it's given the consider the equation dH is equal to Cp dt. Okay, so which among the following statement regarding the applicability of equation is true? For the substance like water, it is valid only for a constant pressure process, assuming no phase change during the process. So this is the correct statement. मतलब स्पेसिफिक हीट कैसे डिफाइन करते हैं हम? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस. ओके, सो मास वी हैड कंसिडर्ड एज सपोज dm. सो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज, मतलब कितनी हीट लग रही है अगर बॉडी का टेम्परेचर हम यूनिट डिग्री सेल्सियस से चेंज करते हैं फॉर ए यूनिट मास, फॉर 1 kg ऑफ मास. तो दिस इज नथिंग बट द स्पेसिफिक हीट. ओके, so for means substance like water, when we define it at constant pressure, let me make it clear. Okay, so del q by m is, means here del q is in kilojoule, so del q by m is in kilojoule per kg, so it is written as del q by del t for simplicity. ठीक है, तो इनकॉम्प्रेसिबल सब्सटेंस लाइक वाटर के लिए क्या होता है कि Cp और Cv में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए हम डेल क्यू कैसे लिख सकते हैं? फ्रॉम फर्स्ट लॉ डेल क्यू इज इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू डी ई. ओके, एंड डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू डी इज नथिंग बट डी यू प्लस डी के ई प्लस डी पी, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी. एंड इफ वी निग्लेक्ट, मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस नेग्लेजिबल है, हम ऐसा माने अगर, तो डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू. एंड ऑन मास बेसिस, मतलब स्पेसिफिक वाले लिखते हैं, मतलब किलो जूल पर केजी बेसिस में लिखे पूरा, तो इट कैन बी रिटन लाइक दिस. ओके, इट इज ओके. एंड
du is equal to plus we know del w for a closed system can be written as pdv. ठीक है, और if pressure is a constant pressure process then vdp, because dp तो जीरो ही होने वाला है बाद में, मतलब कांस्टेंट प्रेशर के लिए तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं आने वाला, तो हम ये टर्म लिखे ना लिखे बस मैनिपुलेट करने के लिए लिख रहे हैं हम, तो मतलब डीपी बाद में जीरो ही हो जाएगा, वो बोलना है मुझे। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा फाइनली इसको सॉल्व करने के बाद, सो पी डी वी प्लस वी डी पी इज डी ऑफ पी वी। ओके, सो डेल क्यू कैन बी रिटर्न एज डी यू प्लस डी ऑफ पी वी, एंड फाइनली इट इज रिटर्न एज यू प्लस पी वी, and from the definition of enthalpy we know u plus pv is h. Okay, so it is dh, so del q is dh, which is valid only for constant pressure process. Okay, so c is written as what we can say, its del q is dh by dt. Okay, so dh is equal to c dt. तो ये जो इक्वेशन है पहला वाला, मतलब ये जो DH इज इक्वल टू CPDT, इट इज वैलिड फॉर वाटर, बट अंडर विच सर्कमस्टेंसेस, अंडर ओनली केस दैट इट इज वैलिड फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। मतलब ये जो वाटर है वो जो प्रोसेस के अंडर वो जाएगा, मतलब जो प्रोसेस से जाएगा वो प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होनी चाहिए, और फेस चेंज नहीं होना चाहिए, बिकॉज फेस चेंज होगा तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा और ये डेफिनेशन वॉयलेट हो जाएगी, मतलब फेस चेंज में टेम्परेचर नहीं बदलता ना, सो दैट dt विल बी जीरो, सो सी विल बिकम इनफाइनाइट, तो ये कुछ वैलिड नहीं रहेगी डेफिनेशन, एंड मतलब ये दो कंडीशन होनी चाहिए, तो उस केस में वाटर के लिए ये वैलिड रहेगा। ठीक है, और आइडियल गैस के लिए ये किसी भी कंडीशन में वैलिड रहता है, बिकॉज एंथैल्पी जो होता है, मतलब h इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर आइडियल गैस, एंड फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट फॉर एन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस वी नो दैट, मीन्स ये किस तरीके से डिफाइन करते हैं हम, जो स्पेसिफिक हीट डिफाइन करते हैं हम सीपी वाली। So Cp is defined like that, Cp is equal to dou H by dou T at constant pressure, and for an ideal gas for undergoing any process, H is of function of temperature only, so this partial differential can be written as total differential, and it's equal to Cp, and dH is equal to Cp dt. Although it is defined using means constant pressure process, but it is valid for any process, और ये किसके लिए, बस आइडियल गैस के लिए, एंड वाटर के लिए तो सिर्फ मतलब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए होनी चाहिए और फेस चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज ए एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर इट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या दिया है उन्होंने, कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, P इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर, सिलेंडर असेंबली। ठीक है, कंटेन 0.8 kg ऑफ वाटर, मास इज गिवन एज 0.8 kg, okay, as a saturated vapor at 400 kilopascal. So at state 1 that is 400 kilopascal पे क्या है, वो सैचुरेटेड वेपर है। इट इज नाउ कूल्ड सो दैट वाटर ऑक्यूपाइज हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो इनिशियली वॉल्यूम से V1 है कुछ, ठीक है, एंड V2 क्या हो गया, V1/2। दे हैव गिवन इट, फाइंड द हीट ट्रांसफर टू द प्रोसेस। सो ये जो 1 से 2 स्टेट चेंज हुआ ये सब्सटेंस में, तो उस ड्यूरेशन में हीट ट्रांसफर कितना हुआ वो पता करना है हमें। तो देखते हैं क्या है। सो इट इज अ क्लोज सिस्टम एज दे हैड मेंशन पिस्टन सिलेंडर असेंबली, और उन्होंने कुछ ऐसा फ्लो मेंशन नहीं किया, तो हम क्या मानेंगे, दिस इज अ क्लोज सिस्टम। ओके, तो फर्स्ट लॉ फॉर क्लोज सिस्टम कैन बी रिटन एज del Q minus del W is equal to du, neglecting changes in kinetic and potential energy. So integrating from 1 to 2 it will be Q1 to 2, मतलब heat transfer from 1 to 2 is equal to W 1 से 2, ठीक है, प्लस U2 minus U1। ओके, तो ये समझ में आया ना आपको, 1 से 2 में 2 के बीच में इंटीग्रेट किया तो ये आ गया। ठीक है, वेट अ सेकंड। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ। तो यहाँ से हमें हीट ट्रांसफर निकालना है इस प्रोसेस में, तो फॉर दैट वी नीड इंटरनल एनर्जी एट स्टेट 2, इंटरनल एनर्जी एट स्टेट 1 एंड वर्क डन फ्रॉम 1 to 2। ओके, तो क्या दिया है उन्होंने, मतलब पहले देखते हैं हम। स्टेट 1 इज गिवन एज सैचुरेटेड वेपर। ओके, तो P1 पर स्टीम टेबल से V1 इज इक्वल टू VG एट 400 किलो पास्कल, तो उसकी वैल्यू क्या आती है हमारी,
it is coming as 0.46242 it's meter cube per kg it's given. So ठीक है, V1 की वैल्यू आ गई यहाँ से, तो V2 विल बी V1/2, तो V1/2 इज 0.23121, इसको 2 से डिवाइड कर देना है बस। क्यों? क्योंकि मास तो बदल नहीं रहा है ना, क्लोज सिस्टम है, तो जितना स्पेसिफिक वॉल्यूम रहेगा वही हाफ हो जाएगा बाद में। ठीक है, तो स्टेट 1 पे प्रेशर पता है, U पता है, V1 पता है, और हमें क्या चाहिए? इंटरनल एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि चेंज निकालना है, तो U1 इज गिवन बाय UG, क्योंकि सैचुरेटेड वेपर बोला है ना उन्होंने स्टेट 1 पे, तो UG इज गिवन एज 2553.1 किलो जूल पर kg। सो दिस इज इंटरनल एनर्जी एट स्टेट 1 एंड एट स्टेट 2। तो ये V2 देखेंगे हम, ऑब्वियसली ये V1 का हाफ है, और व्हाट वी से मतलब VF जो होता है, VF V2 VG, तो जो 400 किलो पास्कल पे है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, सो P2 इज गिवन एज 400 किलो पास्कल एंड एज V2 इज लाइंग बिटवीन VF एंड VG, सो इट इज इन अ वेट वेपर रीजन। ठीक है, पहले सैचुरेटेड वेपर था, अभी वेट वेपर रीजन में है, तो पहले हमें क्वालिटी निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि V2 पता चल गया हमें, बट क्वालिटी क्यों निकालनी है? ताकि हम इंटरनल एनर्जी निकाल सके। ठीक है, तो हम क्वालिटी कैसे निकालेंगे? हमें VF पता है स्टीम टेबल से, VG पता है, तो क्वालिटी इज गिवन बाय V2 इज इक्वल टू VF प्लस X VG माइनस VF। ओके, सो VG इज नोन फ्रॉम स्टीम टेबल, VF इज नोन, V2 इज नोन, दिस इज द V2, सो X विल बी 0.49882515। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ क्वालिटी एट स्टेट 2। तो क्वालिटी भी आ गई अपनी, क्वालिटी आ गई, तो फिर U2 कैसे आ जाएगा? सिमिलरली ऐसे UF प्लस X UFG, UFG is UG minus UF. Okay, so after substituting the value, U2 will be coming as 1576.38, तो U2 की भी वैल्यू आ जाएगी किलो जूल पर kg में। 1 मिनट, सॉरी फॉर इंटरप्ट। सो हमने इंटरनल एनर्जी निकाल ली, मतलब दोनों स्टेट पे, सो U2 minus U1 is known to us, सो बचा गया अभी W1 to 2। सो फॉर अ क्लोज सिस्टम वी नो W is equal to इंटीग्रल PdV, so 1 to 2 1 to 2। okay, so for constant pressure process P is V2 minus V1। ठीक है, तो P is equal to delta V, तो V2 is known to us, V1 is known to us, so it will be in kilojoule per kg and this will be also in kilojoule per kg। so after putting the value, मतलब specific volume पता है दोनों स्टेट पर, इंटरनल एनर्जी पता है, तो वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर, ये इस इक्वेशन में फर्स्ट लॉ में, तो वहां से Q12 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? मैं आपको दोनों की बताता हूँ। सो वर्क डन आ जाएगा हमारा -92.484। ओके, एंड इंटरनल एनर्जी आ जाएगी हमारी माइनस व्हाट इज दिस 976.71। तो ये कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा Q12 क्या आ जाएगा हमारा -1069.194, इट्स इन किलो जूल पर kg। ठीक है, अभी तक हमने मास से मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट विथ मास, यूनिट का ध्यान रखना है आपको मेनली, तो मास से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा 0.8 इंटू ये इस वैल्यू को 1069.194, आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी विल गेट माइनस ऑफ 855.35 किलो जूल पर kg। ओके, तो 855.35 इज करेक्ट आंसर, सो ये इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इट। आई होप आपको ये समझ में आया। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो हियर इज अ कॉमन डेटा फॉर क्वेश्चन 9 and 10। सो देखते हैं क्या करना है इसमें। अ इंसुलेटेड रिजिड टैंक इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। ओके, तो ये जो टैंक है, अगर हम पूरे टैंक को सिस्टम मानेंगे तो नेट हीट ट्रांसफर इज 0 फ्रॉम द टैंक। ओके, सो इंसुलेटेड बोला है उन्होंने, एंड रिजिड, सो VA प्लस VB इज इक्वल टू 0, नेग्लेक्टिंग ये इसका जो मतलब है ये मास, वो उतना ही, मतलब वो भी कांस्टेंट ही रहने वाला है, तो ये वाला भी रिजिड ही है मान लेते हैं हम, ये जो पिस्टन है। ठीक है, तो मतलब ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है, इन दोनों का वॉल्यूम जो मिला के होगा दैट विल बी इक्वल टू, मतलब दैट विल रिमेन कांस्टेंट।
as they are saying that it is a rigid tank, so it will be also be remain constant. तो ये मतलब हो जाता है इसका. नेक्स्ट लाइन इज, ये भी 1 मीटर क्यूब है एंड बी इज ऑल्सो 1 मीटर क्यूब इनिशियली. ओके, एंड साइड ए, तो जो ए पार्ट है उसका प्रेशर दिया है उन्होंने इनिशियली 200 किलो पास्कल एंड टेम्परेचर दिया है उन्होंने 300 केल्विन. एंड सिमिलरली बी पार्ट का प्रेशर दिया है उन्होंने 1 मेगा पास्कल, दैट इज 1000 किलो पास्कल एंड टेम्परेचर इज गिवन एज 1000 केल्विन. ओके, तो पिस्टन इज नाउ अनलॉक्ड. तो ये पिन निकाल दिया उन्होंने अभी, नाउ अनलॉक्ड. सो इट इज फ्री टू मूव एंड इट कंडक्ट हीट सो दैट एयर कम एट ए यूनिफॉर्म टेम्परेचर TA इज इक्वल टू TB. तो फाइनली जो टेम्परेचर हो जा रहा है वो एयर का से TF, और वी कॉल इट सिंपल टर्म में उसको T बोल देते हैं. सो फाइनल टेम्परेचर दोनों का क्या हो जा रहा है, TA TB इज इक्वल टू T. लेट्स एज्यूम इट, ऐसे ही जनरल कोई नाम दे रहे हैं हम T. तो हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ये यूज करेंगे हम इसको. एज्यूम एयर एज एन आइडियल गैस विद अ कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट. ओके, सो ये सारे ध्यान में रखने के बाद हम क्या करते हैं, तो ये पूरा हमारा सिस्टम है, मतलब दिस एयर इज अ सिस्टम, होल बॉक्स इज अ सिस्टम, होल कंटेनर. सो सिस्टम में एक तो देखिए इंसुलेटेड है तो नेट हीट ट्रांसफर, इंसुलेटेड है तो नेट हीट ट्रांसफर इज 0. ओके, एंड रिजिड, टोटल सिस्टम रिजिड है तो नेट वर्क ट्रांसफर इज 0. सो फ्रॉम फर्स्ट लॉ del Q माइनस del W इज du. नेग्लेक्टिंग चेंजेस इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी वी कैन राइट DE एज du. सो ये भी 0 है, हमने दे दिया आर्गुमेंट इंसुलेटेड ड्यू टू रिजिड नेचर, दिस इज ऑल्सो 0. तो क्या बच गया du. सो du इज इक्वल टू 0, मतलब फाइनली जो इंटरनल एनर्जी होगी वो इनिशियल इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी. सो U2 विल बी इक्वल टू U1. ये हो गया. अभी U2 इज इक्वल टू M फाइनल एंड CV इंटू व्हाट वी से T फाइनल इज T. ठीक है ना, उन्होंने मतलब हमने माना है T फाइनल जो होगा वो T होगा, TA TB इज इक्वल टू T. एंड U1 इज U ऑफ A प्लस U ऑफ B इनिशियली, तो दैट इज MA CV as they have mentioned that assume air as an ideal gas with constant specific heats. तो C सबका सेम ही रहेगा, इट्स TA इनिशियल टेम्परेचर. ओके, एंड इट्स MB CV TB. ठीक है, ये इक्वेशन समझ में आया आपको. U2 इज इक्वल टू U1 से आया ये. तो लेट्स राइट इट फर्दर इन अ सिंप्लीफाइड मैनर. सो MF T इज इक्वल टू MA TA प्लस MB TB. ओके, सो इसको बॉक्स में रख देते हैं, हम इसको यूज करेंगे. पहले हम मासेस वगैरह कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, तो मासेस क्या होंगे, आइडियल गैस इक्वेशन, मतलब आइडियल गैस एज्यूम करना है तो आइडियल गैस इक्वेशन से हम निकालेंगे. तो देखते हैं हमारा क्या आता है आंसर. Let me erase it first. So क्या बाकी था हमारा मास. ठीक है, तो MA क्या आ जाएगा सिंपल टर्म में, आइडियल गैस इक्वेशन में वी नो PA VA इज इक्वल टू MA R TA. ओके, तो VA इज 1 मीटर क्यूब. ओके, and PA is given as 200 किलो पास्कल, 200 किलो पास्कल, VA is 1 मीटर क्यूब. R को एज इट इज रखते हैं फॉर, मेरे को कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, कोई ज़रूरत नहीं है वो अभी करने की, तो R को सब्सटीट्यूट नहीं करते थोड़ी देर के लिए. एंड TA इज 300. ओके, सो MA क्या आ जाएगा हमारा, MA विल बी इक्वल टू 2/3R. ठीक है, सो दिस इज MA. Similarly, MB is equal to PB VB R TB. तो PB TB हजार कट जाएगा, VB is 1 तो it is 1/R, डिवाइडिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय 3 it is 3/3/R. ओके, ये
कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए किया है बस, बाकी ऐसा कुछ है नहीं इसमें। तो एम ए भी पता चल गया हमें, एम बी भी पता चल गया। अभी ये जो बॉक्स करके रखा है इक्वेशन, दिस इक्वेशन, यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट कर देंगे वैल्यूज, बिकॉज टी ए इज नोन टू अस, टी बी इज नोन टू अस, नाउ एम ए एंड एम बी आर ऑल्सो नोन टू अस। तो एम एफ फाइनल मास विल बी इक्वल टू, मतलब ये जो पूरा सिस्टम एक पे ही आ गया ना, एक ही इस पे आ गया, तो एम एफ इज एम ए प्लस एम बी इज एम एफ, नथिंग बट एम एफ। ये क्लियर है ना आपको? मतलब उन्होंने बोला है कि ये लॉक छोड़ने के बाद, मतलब ये लॉक पिन निकालने के बाद सारा जो सिस्टम है एक ही स्टेट पे आ जाएगा। तो हम सारा सिस्टम मान रहे हैं, मतलब ए प्लस बी को सिस्टम मान रहे हैं, तो टोटल मास विल बी इक्वल टू एम ए प्लस एम बी। सो फाइनल मास इज इक्वल टू एम ए प्लस एम बी। ओके, सो एम ए टी ए प्लस एम बी टी बी। सो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू इट इज 5/3r, 5/3r, r is in denominator and t we need to calculate. Ma is equal to 2/3r and Ta is, what is the value of Ta? Ta is 300 and it's 3/3r and Tb is 1000. Okay, so from here T we will get as, क्या मिलता है हमें, 3600/5 and it's 720 Kelvin. Okay, so D is the correct answer. आई होप आपको समझ में आया ये कैसे किया मैंने, ठीक है ना। ये दिस इज इट कम्स फ्रॉम एनर्जी इक्वेशन, वो पिछला, मतलब अगर फास्ट लगा होगा तो स्लो करके देख लेना। फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं हम, इसी का पार्ट है दूसरा वाला। व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर? ओके, तो ए प्लस बी इज अवर सिस्टम, सो फाइनल प्रेशर विल बी सेम थ्रू आउट, बिकॉज कैसे इक्विलिब्रियम में आ गया सब कुछ, तो ये पिस्टन मूव नहीं कर रहा है कहीं पे भी, मतलब इधर साइड से जो प्रेशर है उधर साइड से भी वही प्रेशर है, एंड पिन निकाल दिया हमने, और इधर भी फ्रिक्शन नहीं है, इधर भी फ्रिक्शन नहीं है, तो वॉट एवर द प्रेशर विल बी ऑन दिस साइड, सेम विल बी ऑन दिस साइड, सो थ्रू आउट द सिस्टम प्रेशर विल रिमेन सेम, ठीक है। तो पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी एफ, ओके, एंड टोटल वॉल्यूम इज नोन टू अस, दैट इज वी ए प्लस वी बी। सो P A plus B is P final and V A plus B, that is final volume. PV is equal to M A plus B R and T A plus B we have calculated above. पूरा सिस्टम एक ही इस पे है ना, तो PF is equal to M A plus B क्या आ जाएगा, that is 2/3R plus 3/3R, R is in denominator and R and TB is 720 we have calculated, and VA plus B is, that is 1 plus 1, A का 1 मीटर क्यूब, B का 1 मीटर क्यूब, तो टोटल 2 मीटर क्यूब, तो that is 5/3R into R into 720 divided by 2. So after calculating we will get RR get cancel, so 3 2 just 6 and 12 6 6 12 are 72, so it's 120 into 5, 12 5 are 60, so 600 is the correct answer for it, ठीक है। तो B is the correct answer and I hope आपको समझ में आया होगा। अगर फास्ट लग रहा होगा तो थोड़ा धीरे करके देखिए, एंड कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके।